So discussing the graph of e to the power kx. Let the screen share. Screen is not sharing, right? Or is it? It is, ma'am. It is, so I don't see it. Wait, I need to see it. नए चैप्टर के बारे में नहीं बेटा, लॉग ही चल रहा है. लॉग के 2 सब टॉपिक्स रह गए. Just a second. I cannot see the screen. I don't know why is that. That's so weird. मुझे screen नहीं नजर आ रही. चलो, anyway. Okay, so I mean I cannot see that you can see the screen. तो बिल्कुल blank मुझे display आ रहा है. But anyway, if you're saying you can, let's just go ahead. अच्छा, so e power x का हमने graph discuss किया हुआ है. It's called an exponential graph, and it goes something like this. Haki does not touch the x-axis. It goes like this, or it crosses the y-axis at 1 always. So this is the graph of y is equals to x. Okay. Now, what will the graph of y equals 5ex look like? It will start similarly, but it will shoot up faster, and it's going to cross the y-axis at 5. Now my scaling is quite off. If that's 1, that cannot be 5. 5 has to be a lot higher. Let me try to fix that. But I should have taken 1 a lot lower. Let me do that again. 1 should be here. So e power x goes like this. Crosses the y-axis at 1. And then 5 power ex crosses the y-axis at 5. So this is 5. This would be y equals 5ex. What about y equals half ex? What will this graph look like? वो 1 और 0 के बीच में से Exactly. Because when x is 0, this just becomes half. E power 0 is 1, so that's half. So y-intercept is going to be half. So similar start, then it crosses the y-axis at half, and then it shoots up. Y is equals to half e power x. Okay, moving on. We're discussing now the graph of y equals, let's say, minus 5 ex. What will this graph look like? Y equals minus 5 e power x. डिक्रीजिंग रहेगा Decreasing होगा, और start कहाँ से होगा? जीरो से पहले स्टार्ट होगा मतलब यहाँ से? Ma'am, it'll be a reflection of the y is equals to e power x, but on the negative side Exactly. of the x-axis. ठीक है. बाकी अब रिवाइज करते हैं जल्दी से क्वाड्रेटिक ग्राफ. y is equals to x square हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है. वो अच्छा वो राइजिंग और फॉलिंग है हाँ, और y is equals to minus x square हमने पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है. ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गया एक्स एक्सिस पे. सो इससे हमने कंक्लूड किया है कि अगर एक ग्राफ एफ एक्स है और एक ग्राफ है माइनस एफ एक्स, तो वो ना एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. लेट्स से ये एफ एक्स है, देन माइनस एफ एक्स विल बी लाइक दिस. ठीक है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. Note this down, please. It's a very important concept. So, green graph को हम x axis पे रिफ्लेक्ट करते हैं. So, goes like this. This would be -5.
ओके अच्छा मूविंग ऑन। बाकी एक ना जहाँ नोट्स लिखे हैं वहाँ एक और चीज लिख लो कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स वर्सेस एफ माइनस एक्स। वी डिस्कस दिस यस्टरडे। ये रिफ्लेक्शन होती है ऑन द y axis. So if like let's say a graph is like this, if this is fx, then f minus x will be like this. The reflection on y axis. Okay. Okay, ma'am. अच्छा अब आ जाते हैं ग्राफ ऑफ ex plus k. जनरल फॉर्म है y is equals to ex plus k. Again, अच्छा ex की जगह अब मैं कुछ कोई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रही हूँ 5x कर लेते हैं। ओके सो बाकी kx का ग्राफ उसी तरह बनेगा जैसे ex का बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, it goes like this and what should this value be? What do you think, Faki? This is y is equals to 5x 5 Five. power 5। अगर x 0 है तो आपका आंसर 5 आ रहा है क्योंकि यहाँ x 0 है ना। 1 1 से पास होगा। 5 से कब पास होगा? अगर वो 5 टाइम्स 5 पावर x, फिर वो बन जाएगा 5 टाइम्स 5 पावर 0 विच इज 5, जैसे था ना 5ex। ठीक है, e हो या 5 हो या 20 हो या 30 हो, वो हमेशा पावर 0 होके 1 ही होगा। अगर साथ कुछ और फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो 1 से मल्टीप्लाई होके यू विल गेट दैट। ओके, back to this. Okay. Now tell me what should the graph of y is equals to 5 power x plus 3 look like? You've done this in quadratics. Plus 3 quadratic के ग्राफ को क्या करता है? x square plus 3, let's say. If you have x square Plus 4, man, in this case. plus 4, you mean this Yeah, value goes up to 4. Yes, The ma'am. one becomes 4. That makes sense. But generally, what's happening to the graph? Like it's going up faster. That is right. It's not going up faster. It goes up at the same rate. X square plus 3 का graph कैसा होगा? If the green graph is the graph of x square, it's going to be the graph वो of... ऊपर से start करेगा मैम. Yes, it goes up by 3 units. That's it. Same graph होता है, 3 units ऊपर चला जाता है. So you're going to draw exactly the same graph, but it just goes 3 units up. अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 1 की न्यू प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है जो आप लोग मुझे बता चुके हो, इट्स 4। और एक इस लाइन की जो हमने कल डिस्कस की थी, इसको कहते हैं एसिम्पटोट। दिस इज द एसिम्पटोट ऑफ दिस ग्राफ। एसिम्पटोट वो लाइन होती है जिसको ग्राफ कभी भी टच नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आई एम वेरी केयरफुल कि मैं इस ग्राफ को और एक्स एक्सिस को टच ना करूं, बिकॉज इफ आई डू दैट आई गेट 0 मार्क्स और आगे कुछ चेक ही नहीं होगा। बिकॉज दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ दैट यू मस्ट नो कि वो एक्स एक्सिस को कभी टच कर ही नहीं सकता। बिकॉज 5 पावर x कभी 0 हो ही नहीं सकता। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, मैं ले लूं x पावर -100, तो वो बन जाएगा 1/5 पावर 100। इट इज 0.00000 समथिंग, बट इट इज समथिंग इन द एंड। वो 0 हो ही नहीं सकता। So that's why there's an asymptote at 0. Now this asymptote will also move 3 units up. So where should the new asymptote be?
पहले asymptote is on the x-axis. Now it goes 3 units up. So where should the new asymptote be? I don't accept कि तुम लोगों को बात समझ नहीं आ रही. Where will अभी ये asymptote है, ठीक है, ये वाला. अब जब ये 3 यूनिट्स ऊपर जाएगा तो ये किधर आएगा? 3 पे आएगा, exactly. So what you'll do, you'll draw a dotted line at 3 because this is not part of the graph. This is just the asymptote. ये asymptote हो गया. Make a dotted line and then make the graph go up like this और फिर ये 4 हो जाएगा. And this is the graph of y is equals to 5x plus 3. Rahim, is that clear? Now you guys draw the graph of y is equals to 5x, let's say minus 7. इसका ग्राफ बनाते हैं. मैम एसिम्पटोट्स का क्या एग्जैक्ट मतलब कोई वैल्यू है या नहीं. अगर tan का ग्राफ याद हो, आई डोंट नो आप तब क्लास में थे जब हमने tan के ग्राफ्स पढ़े थे. मैम tan याद है tan के ग्राफ पे 90 पे डॉटेड लाइन में बनवाती थी. 90 और माइनस 90 पे, क्योंकि अगर आप tan 90 कैलकुलेटर में करो ना, वो आपको देता है मैथ एरर. tan की कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती tan 90 की, तो हम इस पे एसिम्पटोट बनाते थे. और ये ना लाइन इस एसिम्पटोट को कभी टच नहीं कर सकती ऑन आइदर साइड्स. ये होता है एसिम्पटोट. डू नॉट लेट दिस टच. तो मतलब graph technically it starts from 0.1 0.1 नहीं, 0.00000000001 भी तो हो सकता है. मतलब smallest value of हाँ एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 0. okay इसकी यही लॉजिक है कि आप नेगेटिव वैल्यू का लॉग भी तो नहीं ले सकते ना. ln-5 हम ले सकते हैं? नहीं. ln-2 हम ले सकते हैं? इवन ln-0 नहीं ले सकते. मैथ एरर होता है. वो इसलिए होता है कि ये ग्राफ कभी 0 को टच ही नहीं करता, इस वजह से. Okay, so I've asked you to draw the graph of 5x minus 7. Rahim, are you here? Yes, ma'am. Okay, please draw the graph of 5x minus 7 and send it to me. Jaldi se. -7 से स्टार्ट करेगा ना ग्राफ -7 एसिम्पटोट हो जाएगा. सही है. -7 पे बनाओ डॉटेड लाइन. ग्राफ -7 को टच नहीं कर सकती, उससे ऊपर से शुरू हो. और 1 पे y एक्सिस होता है ना नहीं, पॉजिटिव 1 पे या पहले वो 1 पे कट कर रहा था. अब -7 नीचे आएगा, 7 यूनिट्स नीचे आएगा. कहाँ पे कट करेगा? -6 पे -6. तो I hope your graph looks like the graph I've drawn. ये मैम ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अच्छा, एक और चीज पे भी बात कर लेते हैं. फ्रेश ग्रिड. फ्रेश ग्रिड इसलिए कह रही हूँ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्पेस लेफ्ट ऑन द फर्स्ट ग्रिड. इस पे आप मुझे बना के बताओ.
-5x कर देते हैं और +3, y is equals to -5x + 3. Acha. Rahim, while you do it, I'm going to explain a bit of theory to Haki. Ma'am, I was just sending. I was done. I was taking a No need picture. to send it. No need to send it. ऐसा ही है ना? Asymptote at -7 and y-intercept is at -6. Yes. ठीक है. Okay, now draw this. अच्छा. Haki, ये वही बात हो गई. पहले हमने कहा था ना कि y is equals to 5x है. अब आ कह रही हूँ y is equals to -5x है. वो मैम समझ आ गई। इसको हम fx कह दें और इसको हम -fx कह दें. इनके ग्राफ्स की क्या रिलेशनशिप थी? fx और -fx मैम रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस लाइन पे? एक्सिस पे। हाँ बिल्कुल. तो 5x बेशक डॉटेड बना लो और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दो, या डायरेक्टली बना सकते हो. -5x का तो बहुत अच्छा डायरेक्टली बना, और फिर उसको +3 भी करना है. तो ये करके इसकी मुझे पिक्चर भेजो, हम बेटे. सही खाकी, शेप बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन मुझे बताओ इंटरसेप्ट नहीं दिखाया. वाई इंटरसेप्ट वो क्या है? वो मैंने वो 2 है मैम -2? पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव? नेगेटिव मैम हाँ नीचे है ना नेगेटिव. नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आपने पहले 5 बनाया हुआ है, वो ऐसा होता है, 1 से पास करता है. अब हम बात करते हैं -5x की. अच्छा नहीं खाकी, गड़बड़ है. -5x ऐसे होगा. ठीक है, खाली -5x, ये -1 पे. लेकिन हमने तो इसमें +3 करना है, तो फिर वो किधर जाना चाहिए ग्राफ? नेगेटिव 2 पे उसको करना चाहिए। नहीं, +3 कर रहे हैं फाकी, +3. 3 ऊपर जाएगा ना, ये पूरा ग्राफ 3 यूनिट्स अप जाएगा. +3. तो इधर से फिर मैम 2 से करेगा हाँ 2 से करेंगे. यस, 2 से तो कट करेगा. एसिम्प्टोट किधर जाएगा? पहले ये एसिम्प्टोट था ना, ये किधर जाएगा? 3। 3 पे. यस, तो 3 पे बनाओ डॉटेड लाइन, और वहां से मेक एन अपसाइड डाउन ग्राफ, मेक इट पास थ्रू 2. दैट्स इट. हाँ मैंने यही बनाया। हाँ बनाया ये तुमने तो. अच्छा वो हाँ. मैम हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल थोड़ा मैंने सा नहीं सही खराब लग देखा. रहा है क्योंकि नहीं वो नहीं, बिल्कुल एसिम्प्टोट ठीक में बनाया, ग्राफ है। बिल्कुल सही बनाया. ठीक है, मैंने नहीं सही देखा. यू राइट. Rahim, I hope you got the same thing. Let's proceed.
ओके, आ जाते हैं ग्राफ ऑफ ln(x). राहिम, आई होप यू डन। डू यू वांट मी टू वेट? No, ma'am, I'm done. ओके, अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस द ग्राफ ऑफ ln(x). अभी हमने ex और 5 पावर x के लेट्स से ग्राफ्स देखे थे, एक्सपोनेंशियल। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्स ऑफ ln(x). ताकि we talked about this in detail yesterday. हमने ex का ग्राफ देखा ना अभी तक, it was something like this, right? Yes. ये है fx, और जो ln होता है ना, ln होता है f इनवर्स ऑफ x। क्यों f इनवर्स मैं कह रही हूँ? क्योंकि हम जब e को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो हम उसको e को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो ln बन जाता है, ln को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं वो e बन जाता है। तो ये ना एक दूसरे के इनवर्सेस होते हैं। Now, the relationship between the graph of fx and its inverse graph is that it's a reflection on the line y is equals to x. Y is equals to x is a line like this. You know that from, I don't know, grade 7, grade 8, grade 9. ऐसी लाइन होती है y is equal, इस पे रिफ्लेक्ट करना, तो ln x का ग्राफ बनेगा। So, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये 1 होगा और ये एसिम्प्टोट हो जाएगा, इसको टच नहीं होने देना। ln x का जो ग्राफ है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ ex ऑन द लाइन y is equals to x. Okay, let's build on this. Okay, fresh graph, please. This was revision from yesterday. Let's just draw y equals ln x, y equals 5 ln x, y equals negative 2 ln x. Okay. ln x we know, उसका asymptote y-axis है, and this is 1. What would 5 ln x look like? Ma'am, it would move more towards the right. I think. I mean, I'm just guessing. 5 ln x. No, it will just be higher at a respective value of x. Let's say ln2, इसकी जो ln2 की value है, right? इस पे वो 5 ln2 है, so it's just higher at that particular point. So it's just going to be like this. So let me mark this. This is ln x. Y equals ln x. 5 ln x would have a similar trajectory, but it goes higher. Just give me a second, guys. Assalamu alaikum. Okay, so 5 ln x will just be higher at a particular value. जैसे ये x की value है, ये इधर है, so that should actually be 5 times higher the other value. ये मेरे ग्राफ में तो 5 times नहीं लग रहा, but since these are rough sketches, so it will do. But it's just higher.
That's the only difference. इसी तरह if I say half ln x, half ln x भी draw करते हैं. So it should just be lower at a particular value of x. यूं ही जाएगी, 1 से ही पास करेगी, half ln x यूं होगा. ठीक है. अच्छा जी, now can you guys draw -2 ln x? पहले तो देखो -2 का क्या इफेक्ट होना है, मतलब नेगेटिव का क्या इफेक्ट होना है, और फिर देखो 2 का क्या इफेक्ट है. मैम ये नेगेटिव का इफेक्ट नहीं समझ रहा था। देखो नेगेटिव का बिल्कुल वही इफेक्ट है, ln x है और एक माइनस ln x है, मतलब कि एक fx है और एक माइनस fx है, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या रिलेशनशिप था fx तो वो वर्सेस, रिफ्लेक्ट करता है हाँ किस पे, एक्स वाई एक्सिस पे। माइनस fx पे, y एक्सिस पे नहीं, x एक्सिस पे. मैम एक्स एक्सिस पर हाँ y एक्सिस पे कब होता था, एक fx हो और एक f वो एफ ब्रैकेट के अंदर. माइनस एक्स। हाँ ठीक है, तो इसको ln x को रिफ्लेक्ट कर दो x एक्सिस पे. What would that look like if this is ln x 1 से क्रॉस होगा, तो नेगेटिव ln x पे रिफ्लेक्शन वुड मीन लाइक दिस. इसका एसिम्प्टोट ये नेगेटिव y एक्सिस है, ऊपर वाले का एसिम्प्टोट पॉजिटिव y एक्सिस है. डोंट लेट इट टच द y एक्सिस. ये हो गया नेगेटिव ln x टाइम्स 2 क्या होगा, इट्स जस्ट गोइंग टू हैव अ हायर मैग्नीट्यूड, यहाँ यूं करके होगा, -2 ln x. बेसिकली जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है, इसका उसका अप्रोक्सीमेटली डबल होना चाहिए, टाइम्स 2 और एट डिस्टेंस. ओके मैम। मूविंग ऑन, ग्राफ ऑफ ln ax. ये क्या चीज है, ओके, ln ax. पहले ड्रॉ करते हैं ln x का ग्राफ, फिर ड्रॉ कर लेते हैं ln 2x का ग्राफ, और फिर ड्रॉ कर लेते हैं ln हाफ x का ग्राफ. ठीक है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? By now we should all be familiar with the graph of ln x. So asymptote is the y-axis, ऐसे क्रॉस करके u 1 से गुजर के जाता है. This is y is equals to ln x. Okay. Before we move on, let's discuss कि ये जो है ये इसका asymptote क्यों है, और ये 1 यहाँ 1 क्यों है. Anybody can who can shed some light on this, कि ये 1 से क्यों क्रॉस कर रहा है और इसका asymptote x axis y axis क्यों है. This is the asymptote of ln x, right? And this is the x intercept. क्यों है ये? पहले में ये बात समझ आएगी, फिर हमसे ln 2x का ग्राफ बनेगा, फिर हमसे ln हाफ x का ग्राफ.
अच्छा, मुझे बताओ ln 1 की क्या वैल्यू होती है? ट्राई नॉट टू यूज अ कैलकुलेटर क्योंकि ये नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन है। डू यू रिमेम्बर ln 1 की क्या वैल्यू होती है, या log 1 की वैल्यू क्या होती है? वट एवर द बेस इज 1, not 10. This is from the very first lesson on log that we had. 1. 1 होती है, yes. So log 1 0 होता है, ln 1 0 होता है, इसीलिए ये 1 पे देखो y की वैल्यू 0 है. When x is 1, y is 0. That is why it cuts the x-axis at 1. ठीक है, एक तरह से कह लो कि this is y equals ln x. तो हम देख रहे हैं कि ln x 0 कब हो रहा है, y कब 0 हो रहा है, तो वो e पावर 0 हो गया, एंड दैट गिव्स यू x इज इक्वल्स टू 1. ये इसकी बैक एंड की थ्योरी ये है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x गिव्स यू y इक्वल्स 0. सो इट्स 1. 1 पे y इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है. ठीक है, 2 पावर x के ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या, x इंटरसेप्ट क्या होगा? ये कब 0 होता है? इसका y कब 0 होता है? क्या 1 पे ही 0 होता है? जब x 1 है तो क्या y 0? I'm asking you to find its x-intercept. When x is half, Yes, exactly. When x is half, तो ये 1 होगा ना? या यूं करके देख लो, 0 is equals to ln 2x है. ln goes to the other side, e power 0 is equals to 2x. E power 0 becomes 1. 1 by 2 is equals to x. So इसका x-intercept तो half हो गया, not 1 anymore. Okay. What about its asymptote? When do you get an asymptote in log? When you get a math error in calculator. Negative value. और 0 पे आ जाता है ना, मिनिमम 0 पे आ जाता है. ln 0 हमेशा Yes, ma'am. मैथ एरर देता है. तो ये कब बनेगा ln 0? When x is what? 0. हाँ, so that's why the asymptote doesn't change. Asymptote x equals to 0 पे है. So the graph goes like this. हाफ से कट कर रहा है. अच्छा जी, हाफ एक्स पे आ जाते हैं. हाफ एक्स का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? The lesson is going to end. 2. इसको होमवर्क में कर लो. ln हाफ एक्स का ग्राफ बना के मुझे जरा भेजो, ठीक है? And then we'll build on this tomorrow, inshallah. Take care, guys. Allah Hafiz. I love this, man.